नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेपी डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाकिया तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है लारिंजाइटिस। What is laryngitis? It is the inflammation of larynx leading to edema of laryngeal mucosa and underlying structures. Here you can see the image of laryngitis. Upper image is of normal larynx and lower image is of laryngitis, that is the inflammation of larynx. The types of laryngitis are acute laryngitis and chronic laryngitis. The image of acute laryngitis is there in the slide. Here you can see the red vocal cords. The acute laryngitis is the acute inflammation of larynx leading to edema of laryngeal mucosa and underlying structures. It is caused by infection, viral or bacterial, exogenous agents, autoimmune processes. The causes of acute laryngitis are infectious type and non-infectious type. The infectious type is the most common cause, is a viral infection. However, bacterial invasion may take place with streptococcal pneumoniae, H. influenza, and hemolytic streptococcus, Staphylococcus aureus. Exanthematous fevers like measles, chickenpox, and whooping cough are associated with laryngitis. Non-infectious type, the laryngitis can also be caused or made worse by irritants to the vocal cords such as alcohol, smoking, allergies, direct trauma, vocal overuse, misuse, or reflux of stomach acid into the esophagus and throat, gastroesophageal reflux disease, GORD. Acute laryngitis simple has the symptoms like hoarseness of voice, discomfort, pain, instant paroxysmal cough, general cold, dryness of throat, malaise, fever. The symptoms of laryngitis are hoarse voice, loss of voice, painful to speak, painful to swallow, shortness of breath, upper respiratory infection, sore throat. The acute laryngitis has the signs like erythema and edema of epiglottis, epiglottic folds, arytenoids and ventricular bands. Vocal cords appear normal in early stage. In later stages, congestion and swelling increases. Vocal cords become red and swollen. Sticky secretions are seen between cords and enter arytenoid region. Submucosal hemorrhages may be seen in the vocal cords. Soft tissue structures are epiglottis, ventricular bands, vocal cords, trachea. Diagnosis of laryngitis is based on symptoms. Direct laryngoscopy symptoms are from more than 3 weeks. Acute laryngitis treatment is vocal rest. Avoid smoking and alcohol. Steam inhalation with tincture benzoin. Cough sedatives, antibiotics, analgesics, steroids. Chronic laryngitis is a diffuse inflammatory condition symmetrically involving the whole larynx, that is two cords, ventricular bands, interarytenoid region, and root of epiglottis. Chronic laryngitis, it is a diffuse inflammatory condition symmetrically involving whole larynx. Etiology is incomplete resolution of acute laryngitis and its recurrent attacks. Chronic infection, paranasal sinuses, teeth, tonsils, and chest. Occupational factors, miners, goldsmiths, chemical industries, smoking, alcohol, chronic lung disease, vocal abuse. The clinical features are hoarseness of voice, easily tired, becoming aphonic, constant hawking, dryness, compelled to clear throat, discomfort in throat, dry, irritating cough. The symptoms are hyperemia, vocal cords dull, red and round, viscid, mucosa in vocal cord and interarytenoid region. There is an image of chronic laryngitis. Treatment of chronic laryngitis is the elimination of upper and lower respiratory infections. Avoid irritating factors, voice rest, speech therapy, steam inhalation, supportive measures. The treatment of laryngitis is the hydration. Avoid using your voice or throat. Avoid dry air and breathe moist air. Take antibiotics. Avoid cough, cold medicine. The prevention of laryngitis are avoid or limit voices such as smoking or drinking alcohol, frequent hydration, and practice proper hygiene. Thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you so much.
नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम विवियन डॉक्टर मीनाक्षी, assistant professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द rest part of the anatomy of external ear, part 3. In part 1 we discussed the pinna. In part 2 we discussed the external auditory canal, and in this third part we discuss the third part of the external ear, that is the tympanic membrane or the eardrum. ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द ओवल सेमी ट्रांसपेरेंट pearly gray trilaminar membrane and separates the middle ear from the external ear। ठीक है। तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो ओवल शेप की होती है। ठीक है। और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अगर हम ऑटोस्कोपी करें तो उसमें आपको पीछे की बोन्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और पर्ली ग्रे कलर की होगी। ठीक है। तो कलर कैसा होगा उसका, पर्ली ग्रे। और ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है, यानी उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्राइलेमिनाज होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, मिडिल फाइब्रस लेयर होती है और इनर म्यूकोजल लेयर होती है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये हमारे एक्सटर्नल लेयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। ठीक है। बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स का डायमीटर कितना है, ओवल शेप है तो यानी एक इसका डायमीटर होगा रफली। जो इसका डायमीटर अगर हम निकालें तो मैक्सिमम 9 to 10 mm का डायमीटर होता है और मिनिमम 8 to 9 mm डायमीटर होता है इसका। ठीक है। देन द पोजीशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। जो एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमारी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, उसके फ्लोर से हम देखें तो उससे 55 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस होती है। ठीक है। ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। ठीक है। 90 डिग्री पे नहीं होगी, ये 55 डिग्री पे होती है। ठीक है। और जो न्यूरम बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। देन कम्स द लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हम बात कर रहे थे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्राइलैमिनर होती है, यानी 3 लैमिनास होते हैं। तो आउटर इज द एपिथेलियल लेयर, मिडिल इज द फाइब्रस लेयर एंड इनर इज द म्यूकोजल लेयर। ठीक है। जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद द स्किन लाइनिंग द मीटस। ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन होती है उसी के कॉन्टिन्यूअस में होती है आउटर एपिथेलियम लेयर। और जो मिडिल फाइब्रस लेयर होती है दैट एनक्लोजेस द हैंडल ऑफ मेलियस। ठीक है। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है, मेलियस, इंटस, स्टेप्स। ठीक है। उसका जो मेलियस जो बोन है उसके हैंडल को एनक्लोज करने का काम करती है मिडिल फाइब्रस लेयर। ठीक है। फाइब्रस लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है। फाइबर्स भी 3 टाइप के मिलते हैं इसमें, रेडियल, सर्कुलर और पैराबोलिक। ठीक है। और जो हमारी पार्स फ्लैसिडा, आगे हम पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पास टेंस और पास फ्लैसिडा। जो पास फ्लैसिडा वाला जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। ठीक है। उसमें आपको सिंपली फाइब्रस लेयर्स मिलती है, उसमें 3 तरह की लेयर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। थर्ड लेयर थी हमारी इनर म्यूकोजल लेयर, वो कॉन्टिन्यूअस होती है विद द म्यूकोसा ऑफ द मिडिल ईयर। ठीक है। जो मिडिल ईयर की म्यूकोसा उसके साथ में ही कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है। यहाँ पे इमेज है, इसमें इमेज में आप देख सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है हैंडल ऑफ मैलियस। ये एनक्लोज होता है फाइब्रस लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है। पीछे आपको इंकस दिखाई दे रहा है, स्टेप्स दिखाई दे रहा है और कोन ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो व्हाट इज कोन ऑफ लाइट? कोन ऑफ लाइट इज अ लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है। जब एग्जामिनेशन करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विद ओटोस्कोप तो हमें एक लाइट रिफ्लेक्स दिखाई देता है, दैट इज द कोन ऑफ लाइट। ठीक है। इट इज अ शाइनिंग लाइट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
ठीक है, शाइनिंग लाइट होती है जैसे कोन शेप की रिफ्लेक्शन मिलती है आपको एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दो पार्ट्स होते हैं, पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, पार्स फ्लैसिडा को हम बोलते हैं श्रैपनल्स मेम्ब्रेन। The word is past tensa. Past tensa forms the most of tympanic membrane. Tympanic membrane का जो maximum part होता है that is past tensa. Periphery is thickened to form a fibrocartilaginous ring, annulus tympanicus, which fits in the tympanicus sulcus. ठीक है, तो जो हमारे इसकी पेरिफेरी होती है पास्ट टेंसा की, जो ये पूरी पेरिफेरी है, ठीक है, ये एक एनुलस रिंग बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम एनुलस टिम्पैनिकस। ठीक है, और ये टिम्पैनिकस सल्कस में फिट हो जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ पार्ट एंसा इज टेंटेड इनवर्ट एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ मेलियस। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो यहाँ पे टेंटेड होता है, इसको बोलते हैं अम्बो। Right cone of light seen radiating from the tip of malleus to the periphery and in the anteroinferior quadrant। ठीक है, तो टिप ऑफ मेलियस से लेके पेरिफेरी तक आपको इस तरह की कोन शेप की राइट रिफ्लेक्स दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड द कोन ऑफ लाइट। इट इज फाउंड ऑन द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है, इट इज द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। Then comes the pars flaccida. It is situated above the lateral process of malleus between the notch of Rivinus and anterior and posterior malleolar fold। ठीक है, ये होते हैं हमारे anterior malleolar fold। This is the posterior malleolar fold। ठीक है, this is the notch of Rennes यहाँ पे। तो इनके बीच में जो एक आपको पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, appear slightly pinkish। ठीक है, पार्स फ्लैसिडा कलर होगा स्लाइटली पिंकिश। देन द नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में सप्लाई होती है बाय द सर्वाइकल सेकंड एंड थर्ड नर्व। ठीक है, सर्वाइकल सेकंड नर्व एंड द सर्वाइकल सेकंड नर्व टू द ग्रेटर ऑरिकुलर एंड द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 रीजन आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड दिस सेकंड इज सप्लाइड बाय द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है, सेकंड इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व में ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच। व्हाट इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व? इट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल की जो ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच है। ठीक है, दिस फोर्थ पोर्शन ये सप्लाई होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच से। नेक्स्ट इज द टेंथ क्रेनियल नर्व, उसकी ऑरिकुलर और अर्नोल्ड्स ब्रांच। ठीक है, तो टेंथ होती है हमारी वेगस नर्व, उसकी ऑरिकुलर या तो दूसरा नाम है अर्नोल्ड्स ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल ईयर को। ठीक है, ये थर्ड आपको जो ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व टेंथ। देन फाइबर्स फ्रॉम द सेवंथ क्रेनियल, और जो हमारे फेशियल नर्व है उसके फाइबर्स भी नर्व सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई होती है एक तो और एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और सेकंड होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द ईसीए। व्हाट इज ईसीए? ईसीए इज अ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें लिम्फेटिक्स। ठीक है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है थ्रू प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, superficial cervical lymph nodes and the retropharyngeal lymph nodes। ठीक है, तो here completes our session of external ear। ठीक है, thank you so much।
This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.